जब आपका टाइमली केवाईसी आपको केवाईसी कंप्लीट करना है इन 3 मंथ यू विल गेट अ फॉलो अप कॉल। 4 स्टेप होगा। अगर फॉलो अप कॉल आपका रिजेक्ट हो रहा है, हमें आंसर नहीं मिल रहा है, तो वी विल ट्रेस योर नॉमिनीज, वी विल सेटल योर क्लेम्स वॉट एवर यू हैव रजिस्टर्ड इन योर एप्लीकेशन। Our new product into market. It's Legacy. So we have know that everyone is investing into market or investing into they have their own assets. So currently market facing some usually very, like we can say, more issue into market. So that there are around like 50,000 crore plus money is into market that unsettled. So Legacist came across there. We got that problem. So we are solving, or we can say that we are resolving this issue. So that's why we are launching our product Legacist. So more about that, like Suresh can also add some points in it. Yeah. So basically, as Vinay sir mentioned, about 50,000 crore money is unsettled in the market. Some is in term insurances, some is in stock. So we had our own research team. So our research team did a research on that issue. So according to that, we came up with the solution. Firstly, we launched the same app with the name Beyond Life. But then we got to know, we changed it, we rebranded it, and then we launched it as Legacyst. So as today we are completing 7 years, we are launching the Legacyst. So the main part our app will cover is like many people's, like some of you also have invested in markets, but you have not added your nominee to your stocks or mutual funds, right? Many of us do that. So main part in our app is basically we do the KYC verification of an holder or a user, and then we tend to, like, we have done a compulsion to add a nominee to it. So when we add a nominee to it, we do KYC every 3 months. A user is required to do KYC every 3 months. It is compulsion. So when a user does KYC every 3 months, it is okay, no issue. But if the user doesn't do KYC in 3 months, a follow-up team, our follow-up team will call him to know if he's alive or if he's good. So if he's good, KYC is done, no issues. But if he doesn't pick up the call, okay, we'll let that happen. In some 2 days or what, we call him again, and then if the user picks up the call, good, no issues. But if we got to know some uncertain events like his death has happened or some uncertain events, so in that case we will call his nominee directly. We'll call his nominee, and we will talk to them like what happened to the user. He registered his all assets in our fund, in our app, and the KYC was scheduled to complete the KYC. So at that time, if the nominee says that some uncertain events has happened to the user, then at that time we will visit the nominee. Then we'll pass on all the details that the user has stored, like term insurances, stocks, etc. So all these things will be handed over to nominee. That's basically what our app is doing. We will also be adding some new features to it as the launch is progressing. So moreover, her server tool. So basically, we all know that passing away of our one of our beloved, family member is always, um, we don't like it. So what happens when a family member passes away? We are in such a shock that we don't know what to do. At the same time, if there is a person or a app or someone to support you, pass on their legacy to you all, to their family members, it is always good to have that kind of person. So legacist is basically that person that we will assist you after of a certain family member to pass on their legacy to other family members. So yes, we are today launching that product of ours, and we will be adding new features as Suyash said. And once as he explained the entire process, yes, it is very crucial for the person who is using Legacist app to complete their KYC every 3 months. That makes us sure that the person is doing well. But if that person doesn't do their KYC in every 3 months, we will try to get in touch with them in our first attempt. If he doesn't answer, maybe due to some other reasons, then we will try to connect with them for the second time. If he doesn't answer, if he or she doesn't answer for the second time, then we will try to connect with the nominee. And yes, if the person was unable to attend the call, well and good, we will do their KYC. But in uncertain events, if any uncertain events has happened, then yes, we will
get in touch with the nominee, ask them for a suitable time where a representative from our company will go to their place and basically assist them, help them in their grieving time, that how to proceed further and how the person who have passed away, their legacy will pass on. Okay, that is the complete idea of Legacist. Basically, we are focusing on a tagline: ensuring your legacy lives on. Lives on. So, any questions to have? So it's only for death or any accidental insurance? Everything. All So, kinds of insurance we will cover. yes. Stocks, mutual funds, insurances. Any assets that any you assets carry, have. we will support you on that basis. Even if you have one Whatever asset. assets you have, whatever policies you have, you just have to mention it on our app, Platform. and yes, we will pass it on to your family How to members. collaborate the insurance company with you types? So we are tying How up. many insurance company types? We have already done with them. Even we have we have tie-up with different companies. Even we can say that Anurati. Yes. Even we can say that like All Reliance. major So we are insurance into tie-up with them. companies, we are tying up one by one, and yes, we are working on other assets as well, like real estate or something like that. So whatever things individual wants to pass on, we will cover that in our platform. Is there any charges for this application? Yeah, so currently we will be awarding 1 year free membership to all the users, and then after that we can assign charges. And the charges will be nominal, like moreover 600 rupees or yeah, that for a year. The charges will be very nominal. आपने यहाँ पे मेंशन किया है कि फार्म जो कंपनी है उसमें भी आप प्रोवाइड करने वाले सर्विस, तो इसमें किस तरह से आप करने वाले हैं? फार्मा कंपनी, हाँ या ओके, फार्मा कंपनी में हम कैसे प्रोवाइड करने वाले सर्विसेज? बेसिकली आई Basic- डिडंट गेट योर क्वेश्चन, लाइक व्हाट? यहाँ पे आपने मेंशन किया हुआ है कि टेक्निकल सेक्टर में भी आप फार्मा एंड इवेंट्स में भी विभिन्न क्षेत्रों Okay, में okay, काम Okay, करते हैं। तो इसके बारे में वो सैटमैट के बारे में था कि सैटमैट वी हैव नॉट ओनली इन अ टेक्नोलॉजी, वी हैव अनदर प्रोडक्ट लाइक सैटमैट इवेंट, सैटमैट फार्मा. तो वहाँ पे हमारे खुद के प्रोडक्ट्स है, जैसे कि आप बोल सकते हो कि जैसे टैबलेट्स रहेंगे, तो वैसे हमारे खुद के प्रोडक्ट्स है जो अवेलेबल है मार्केट में, और हमारे उसके लिए डेडिकेटेड दूसरी टीम है जो उस पर काम करती है. वी आर आवर ओन प्रोडक्शन हाउस. सो वहाँ पे वो सारा रिसर्च वगैरह करके हम लोग वो मार्केट में प्रोडक्ट अभी लॉन्च कर चुके हैं. We have a one hood that's called SatMat Group, and under that we have SatMat Pharma, SatMat Events, and SatMat Technologies. So today we are launching the product under SatMat Technologies. आपका पहला नाम बियॉन्ड लाइफ था, आपने क्यों चेंज किया? Okay. Beyond life. सो अभी जैसे कि पकड़ लो कि रीब्रांडिंग करनी थी, तो बेसिकली हमने बहुत सारे आइडिया सोचे. तो मेन आइडिया क्या थी कि जैसे कि पकड़ लो कि लेगेसी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि एसेट जो भी होता है वो नॉर्मल एसेट नहीं रहता, वो तो लेगेसी रहती है. जैसे कि पकड़ लो कि आप गांव में ही जाता है तो उसके पास एक आदमी के पास ज़मीन रहती है 10 एकड़ 15 एकड़ जितनी भी रहेगी उसके पास, तो उसकी वो खुद की लेगेसी रहती है. तो लेगेसी उसके जब वो आदमी पास आउट होता है, फिर इवेंट होता है कुछ उसके साथ, तो फिर वो लेगेसी जो उसकी है तो उसकी पास ऑन होती है उसके बच्चों के लिए या फिर उसके लिए. तो फिर वो प्रॉब्लम था यहाँ पे कि अगर आदमी कोई इन फ्यूचर अगर उसके साथ कोई डेथ वगैरह होती है तो उसके बच्चों को या फिर उसके फैमिली मेम्बर्स को पता नहीं रहता कि उसके एसेट्स कहाँ पे है और किस जगह पे उसने इन्वेस्ट किया है. इवन वो इतनी लेंदी प्रोसेस है कि अगर पकड़ लो कि आपने म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट किया है तो म्यूचुअल फंड वाले पे कहाँ पे रहता है कि उनके बहुत सारे जगह पे इन्वेस्टमेंट रहती है. तो इन केस अगर इन पर्सन कोई तो पास आउट हुआ है तो उसको हर कंपनी में जाके एप्लीकेशन डालना पड़ता है कि ये सर थे, पकड़ लो कि इनका नाम था और इनका यहाँ पे एज अ म्यूचुअल फंड थे और हमें यहाँ से हमारे एसेट्स वापस चाहिए. तो इतना लेंदी प्रोसेस है कि पकड़ लो कि उस एक प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए अराउंड 6 मंथ चले जाते हैं. इसलिए मैंने बोला कि अराउंड इंडिया में करंटली 50,000 करोड़ से भी ज़्यादा मनी जो है या फिर असेट्स जो है वो अनसेटल्ड है. तो यहाँ पे वो सबसे बड़ा दिक्कत है मार्केट में, क्योंकि लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे. तो वहाँ पे हम लोग है कि हम लोग आपको असिस्ट करेंगे कि आपकी लेगेसी आपके फैमिली मेम्बर को ट्रांसफ़र हो जाएगी. हर एक इंश्योरेंस का अपने एजेंट होते हैं, वो भी वही सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो आप अलग कैसे कर देंगे? सब पकड़ लो कि अभी मार्केट में जैसे आपने बोला कि बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह वो खाली एक ही चीज़ करते हैं. वो क्या करते हैं, खाली इंश्योरेंस बेचते हैं. बाकी उनको कुछ से कि अगर आसान भाषा में बोला जाए तो उनको ऐसा कुछ लेना देना नहीं है. उनको खाली उनके पैसे से मतलब है कि मैंने पॉलिसी बेच दी,
उससे मुझे पैसे आ जाएंगे, बस उतना ही उनका है। तो अगर, इसलिए तो मैंने कहा कि अराउंड 50,000 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा अगर मार्केट में है तो वो प्रॉब्लम है। आप ही सोचिए, आपने एक बार पॉलिसी भर दी, आपको वो हर 3 महीने में कॉल करेंगे कि आप नहीं जिंदा करेंगे। है? नहीं करेंगे। बट 3 महीने ही क्यों? 3 महीने के बाद वापस केवाईसी वेरिफिकेशन आप कर रहे हो। हर 3 महीने में। हर क्यों 3 महीने ही क्यों? क्योंकि बाकी तो इंश्योरेंस कंपनी ऐसा नहीं करती। यस मैम, बट अगर आपको कंटिन्यूसली किसी Call का कॉल करेंगे। आए तो आप एट सर्टन पॉइंट फ्रस्ट्रेट होकर आप यही बोलोगे कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए। बट आफ्टर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, अगर एवरी 3 मंथ्स आपको सिर्फ केवाईसी के लिए ही कॉल आया है, जस्ट टू नो दैट यू आर वेल, तो आप वो कॉल अटेंड करके बोलोगे हाँ कि ठीक है। तो वो बस फ्रस्ट्रेशन पार्ट जो है वो हमको नहीं चाहिए था, कि हम लोग कस्टमर को फ्रस्ट्रेट ना करें। एवरी 3 मंथ्स इसलिए क्योंकि ना यार देयर आर 4 क्वार्टर्स, एवरी 3 मंथ्स आपका मतलब सिर्फ हालचाल पूछने के लिए और केवाईसी करने के लिए हम लोग आपको कॉल करेंगे। और केवाईसी भी ऐसी कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, जहाँ पे 2 क्लिक करने का खाली आपको वहाँ पे आपका आधार नंबर रहेगा, वो डालना है, क्लिक करोगे केवाईसी हो जाएगी। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है क्या कि अगर कुछ इशू होता भी है तो हम कोई एक्स्ट्रा होता है तो जो नॉमिनी है वो खुद आपको कॉल करेंगे ना बेनिफिट्स के लिए। हाँ। तो आपका क्या मतलब होता है कि आप 3 महीने में बार बार वेरिफिकेशन करते हो? अगर उनको बेनिफिट लेना है तो वो खुद आपको काउंट करेंगे ही ना। तो वो कंसर्न हम लोग उनसे पूछेंगे ना, जैसे कि हर्ष ने पहले भी बोला कि अगर इन पर्सन की उसको नहीं चाहिए या फिर कुछ वो कहाँ पे अलग है, पकड़ लो कि वो यूएस में बैठा है। सर गलत है ना कि आप 3 महीने में कॉल करते हो एक- और पूछते हो कि आप जिंदा हो। नहीं नहीं नहीं, हम लोग KYC जिंदा है ये नहीं पूछेंगे, हम लोग जिंदा पूछेंगे कि है, आपने KYC केवाईसी के नहीं लिए, की है। application के लिए। KYC नहीं की है। Indirectly वही हुआ ना कि आप पूछते हो कि केवाईसी करना है सर, आप ही हो क्या? मैम एक पर्सनल टच भी कस्टमर्स के लिए। इट्स सेल्फ वेरिफिकेशन मैम। हमारे ऐप का मोटो क्या है कि आप है, समझिए आप है, आपने हमारे ऐप पर रजिस्टर कर दिया, आपके घर वालों को आपके एसेट्स के बारे में कुछ पता नहीं या आपको कुछ बताना नहीं है। ऐसे बहुत लोग होंगे कि घर पे बताते नहीं। हमारा मोटो क्या है कि अगर इन सर्टन अनसर्टन इवेंट्स में अगर आपके साथ कुछ हो जाता है तो आपके घर वालों को कहीं भटकना ना पड़े, जो आपकी लेगेसी वो उनके पास फॉरवर्ड हो जाए, यही हमारा मोटो है। इसलिए हम 3 मंथ्स में सेल्फ वेरिफिकेशन ले रहे हैं कि आदमी है ऐसा। ऑन द ऐप भी सेल्फ वेरिफिकेशन है केवाईसी। अगर वो नहीं होता है विद इन 3 मंथ्स, जस्ट विद ऑन अ फिंगर क्लिक, अगर वो नहीं होता है देन ओनली वी विल गेट इन टच। और क्या फायदे हैं? क्योंकि आप ही का क्यों लेंगे ना? मार्केट में आप कोई चूज करेंगे, क्यों चूज करेंगे? मार्केट में अभी कोई है मैम? मेरा एक ऐसा है? पर्सनल आपको मैं एक सिनारियो बताता हूँ कि विद सर्टन मतलब कंपनी, मेरे फादर का इंश्योरेंस था। व्हेन ही पास्ड अवे उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले, बट बेसिकली मेरे को एक 5-6 बार ऑफिस जाके उनके वो डॉक्यूमेंट्स, प्लस उसको क्लेम करने के लिए मेरे को और 6 महीने है, ये ऑफिस से वो ऑफिस जाओ, वो ऑफिस से तीसरे ऑफिस जाओ, फिर हेड ऑफिस जाओ मेन चीज़ के लिए। तो बेसिकली जो हैसल है हमने वो फिगर आउट किया है कि हमको जो हम पे बीती है या मुझ पे बीती है वो हमको पास, वो किसी के साथ ना हो, क्योंकि वी हैव बीन थ्रू दैट। तो बेसिकली वो हैसल, वो फ्रस्ट्रेशन कि हम लोग तो एक डिफरेंट माइंडसेट में होते हैं वो सिचुएशन में, उसके बाद भी 1 साल तक हमको वो कवर अप करने के लिए, मतलब स्टेबल होने के लिए 1 साल कम से कम तो भी लगता है, और उसके बीच में इतनी सारी चीज़ें। बट हमारा जो मेन पेन पॉइंट है, बस हमको वो सॉल्व करना था कि आपको हैसल फ्री आपकी चीज़ें मिल जाए, वो हमारा मेन कंसर्न है। और इसी के लिए हम लोग ने ये लेगेसिस्ट ऐप Launch किया। लॉन्च किया। सर आपको ऑफलाइन ऑफिस है जो कस्टमर के डायरेक्ट ऑफिस में यस। हाँ। यस सर, हमारे मल्टीपल ऑफिसेज है, विमान नगर में हाँ। भी ऑफिस है और कल्याणी नगर में भी ऑफिस है। और हर ऑफिस का अलग अलग है, जैसे कि हमने बोला कि अंडर अ रूफ ऑफ सटमैट वी हैव डिफरेंट ग्रुप्स। तो हर ग्रुप का अपना अलग ऑफिस है, अलग वहाँ पे लोग काम करते हैं, अलग रिसर्चर्स वहाँ पे है जो इस चीज़ पे काम करते हैं। सर सेटमेट ग्रुप के बारे में कुछ बताएंगे? सैटमैट ग्रुप हम लोग वी आर इनटू यू नो मल्टीपल बिजनेसेस। एक है सैटमैट फार्मा वेयर वी यू नो वर्क इनटू फार्मास्यूटिकल सेक्टर। वन इज सैटमैट इवेंट्स। बेसिकली मुंबई और पुणे में जो हनी सिंह के शोज़ हुए थे वो सैटमैट इवेंट्स नहीं करे थे, और वी हैव सम यू नो इवेंट्स नेक्स्ट ईयर इन पाइपलाइन एज वेल। तीसरा जो ग्रुप है दैट इज सैटमैट टेक्नोलॉजीज। तो अंडर दैट हम लोग बेसिकली फिनटेक में थे, फिनटेक में ही हैं, और वी वेर यू नो फिनटेक कंपनी सर्विंग अदर्स, बट नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स इनटू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। So this is
there are multiple products which we will be launching very soon. Legacyst is our first app which we are launching today. हम लोग सेग्रीगेट करते हैं, so we are a company of 51 to 200 employees. फॉर हिंदी ठीक है चल। सो बेसिकली सैटमैट 2017 में स्टार्ट हुआ था। सैटमैट इनिशियली सैटमैट टेक्नोलॉजीज़ से स्टार्ट हुआ था। हम लोग एक ही सेगमेंट में काम कर रहे थे, इसमें लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे थे। सो आवर मेन मोटो वॉज टू सपोर्ट स्टार्टअप्स। जो स्टार्टअप्स है, बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जितनी भी, उनकी कॉस्टिंग काफ़ी हाइयर होते हैं। तो हमारा जो मोटो था, बेसिकली हम लोग एक ही सेगमेंट में काम कर रहे थे, वो स्टार्टअप्स। मार्केट में कोई भी है, जैसे कोई भी प्लेटफॉर्म बनाना, जैसे कि ई कॉमर्स बनाना है, एनी आइडिया ही है, जिसके पास जो भी आइडिया है, तो हम लोग स्टार्टअप्स को सर्विस प्रोवाइड करने में 2017 से शुरुआत की थी। साथ ही में उसके बाद हमने फिर बैंक के साथ टाई अप किया। ICICI बैंक के साथ हमारा टाई अप हुआ APIs इंटीग्रेशन के लिए। फिर उसके बाद हमने येस बैंक के साथ काम किया। फिर काफ़ी मल्टीपल बैंक्स के साथ हम लोग फिनटेक प्रोडक्ट्स में आ गए। तो फिनटेक मतलब आजकल तो सारे लोग रिचार्ज मोबाइल एप्लीकेशन से कर ले रहे, जैसे फ़ोन पे हो गया, गूगल पे। बट आज से 5 साल पहले जब UPI नहीं था, तब ये चीज़ें होती थी रिटेल से, शॉप टू शॉप जाके ऐप करते थे। तो शॉप में हमारा वो एप्लीकेशन तब चलता था, वही सेगमेंट में हम लोग काम करते थे। जिसमें जैसे कि अभी किसी ने पूछा था कि सैटमैट से कितने लोग जुड़े हुए हैं, तो मोर देन 50 lakhs रिटेलर्स आज भी हमारे सॉफ्टवेयर के अंडर मार्केट में काम कर रहे हैं पॉइंट ऑफ सेल पे। अभी उन्होंने सर्विसेज एड ऑन कर लिया, जैसे पहले रिचार्ज होता था, अभी आजकल AEPS चलता है। आधार से कैश विड्रॉल आप उसमें कर सकते हो, पैन कार्ड एप्लीकेशंस है। टेक्नोलॉजीज़ में इसमें हमारे लगभग 50 लाख लोग जुड़े हुए हैं जो रिटेल काउंटर पे काम कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में। दैन लास्ट ईयर हमने सैटमैट फार्मा स्टार्ट किया, जिसमें जेनरिक मेडिसिन हम लोग प्रोवाइड करते हैं। पुणे एंड मुंबई हमारा बेसिक मार्केट है, जहाँ पे हमारी ये मेडिसिन वर्किंग है। मोटो यही है, बाकी मेडिसिन और हमारा जो है वी वर्क कमीशन लेस, जिसमें कमीशन में और जेनरिक मेडिसिन में हम लोग काम करते हैं। आफ्टर दैट वी कम टूवर्ड सैटमैट इवेंट्स, म्यूजिक कॉन्सर्ट्स में हमने काम किया। ठीक है, अभी आजकल म्यूजिक कॉन्सर्ट्स एवरीवन रिक्वायर्ड्स है एंटरटेनमेंट। सब लोग बोर हो रहे हैं, IT में काम कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड, लोगों को कॉमेडी शोज़ और एंटरटेनमेंट चाहिए। तो वही बढ़ती डिमांड के हिसाब से हमने इवेंट्स में लॉन्च किया। एंड अभी हम लोग फर्स्ट प्रोडक्ट हमारा लॉन्च कर रहे हैं जो है लेगेसिस्ट्स। सो लेगेसिस्ट का मोटो यही है कि हम चाहते हैं कि जो अनक्लेम्ड अमाउंट्स है, काफ़ी बड़े बड़े अमाउंट्स है, LIC के पास हो गया है, कोई भी टर्म इंश्योरेंस के पास हो गया, या फिर आप बैंक अकाउंट की बात करो, या स्टॉक की बात करो, या म्यूचुअल फंड में, हर जगह पर नॉर्मली होता क्या है, काफ़ी सारे लोग हैं जो रूरल एरिया से आ रहे, सिटी में वर्क कर रहा है। अभी जनरेशन को पता है, जनरेशन इज अपग्रेडिंग, उन्हें पता चल रहा है कि म्यूचुअल फंड्स क्या है, टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, लोग इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, दे आर गेटिंग देयर सैलरीज, इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। बट एट द रिजल्ट ये चीज़ हो रही है कि उस चीज़ की आज कोई श्योरिटी नहीं है कि जितने इन्वेस्टमेंट्स हैं वो फैमिली पास तक पहुंच जाएंगे कि नहीं पहुंचेंगे। बहुत सारे अन्य चीज़ें लोग हैं, जैसे कि किसी की बात करें, लड़का आया है पुणे में जॉब कर रहा है, उसकी फैमिली रह रही है एनी सिटी में, रूरल में, उन्हें पता ही नहीं है स्टॉक मार्केट क्या होता है, उनको पता ही नहीं कि अप स्टॉक में होता है या ग्रो में इन्वेस्टमेंट होता है। अगर उसको बाई चांस कुछ डेथ हो जाता है तो इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि वो चीज़ें उनकी फैमिली तक पहुँचेगी, तो उसकी गारंटी हम लोग लेते हैं। एज ऑफ नाउ फ्री एप्लीकेशन हमने लॉन्च किया है। नेक्स्ट ईयर से रिन्यूअल चार्जेस है, 600 रुपये पर साल के चार्जेस है, मतलब 1.5 रुपये आपका दिन का आता है। अफोर्डेबल है, हर छोटा सा छोटा व्यक्ति इसे अफोर्ड कर सकता है और सारी एसेट रख सकता है, जैसे स्टॉक हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, बैंक अकाउंट्स हो गए, आपकी LIC हो गई, गाड़ी हो गई, प्रॉपर्टी हो गई। और इसके बाद हमने इसमें विल भी लिखने का ऑप्शन दिया है। जो लोग अपनी विल लिखना चाहते हैं कि मैं अगर बाई चांस नहीं रहा तो मेरे बाद क्या होगा, तो वो भी आप इसमें नोट डाउन कर सकते हो। बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, छोटी सी एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि उधारी वाले ट्रांजेक्शन होते हैं। फैमिली को इंसान नहीं बताता है कि मैं किसे क्या अमाउंट दे रहा हूँ, किसके साथ मेरा क्या व्यवहार चल रहा है, तो वो चीज़ें भी आप इसमें नोट डाउन कर सकते हो। बाई चांस अगर आपको कुछ हो गया तो वो डिटेल्स आपके फैमिली को मिलेगी। इस चीज़ की हम लोग 100% गारंटी लेते हैं। KYC जो हमारा 3 महीने, वो सेल्फ KYC, 3 महीने में आपको कॉल नहीं आने वाला है कि आप जिंदा हो, बिल्कुल नहीं। आपको ऐप में नोटिफिकेशन दिखेगा, आपको KYC करना है कि येस, जस्ट आपको OTP डालना है, दिस इज़ अ हैप्पी KYC, KYC का नाम हैप्पी KYC, जस्ट यू आर हैप्पी, दैट्स इट। अगर आपने KYC नहीं किया तो ही आपको कॉल आने वाला है कि सर आपका KYC ड्यू है। हम उसे नहीं पूछेंगे सर आप जिंदा हो, बिल्कुल नहीं, सर आपका KYC ड्यू है, आपका हैप्पी KYC नहीं हुआ है तो आप इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। यही हमारा मोटिव होने वाला है। जब हमें 3 महीने में रिस्पॉन्स नहीं आता है, हमारी कंपनी ने सोचा कि साल भर अगर 6 महीने करते तो ज़्यादा ड्यूरेशन हो जाता है लाइफ स्पैन के बारे में, तो 3 महीने में अपडेट लेना इज़ अ गुड थिंग। हमारी बैकएंड और रिसर्च टीम का ये अंदाज़ा है कि 3 महीने में वेरिफिकेशन करना चाहिए। एवरी 3 महीने का हम लोग ट्रैक रिकॉर्ड्स रख के करते हैं। और इंश्योरेंस हमारे सारे टाइप्स, यस सर स्मार्ट ग्रुप में ऐसा क्या, ऐप तो बहुत सारे होते हैं, हाँ जी, स्मार्ट ग्रुप में क्या ऐसा चीज़ है कि जो लोग उसको लेंगे? देखो ये एप्लीकेशन जो ये लेगेसिस्ट है, ये सैटमैट का एक प्रोडक्ट है, ये फर्स्ट एप्लीकेशन है। आज तक इसी मार्केट में कोई चीज़ है ही नहीं। आजकल है, अगर जो बड़े बड़े लोग से उन्होंने क्या किया ना, इंडिविजुअली एडवोकेट्स हायर करके रखे हुए हैं।
खुद के, कि हमारी एसेट ये, अगर हमें कुछ होता है तो ये हमारे बंटवारे होंगे, ये हमारी विल है, उन्होंने एडवोकेट्स कर चुके हैं। अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आई बेट कि आज तक किसी ने, मतलब किसी के पास कोई गारंटी नहीं, अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली के पास आपके एसेट जाने वाली की नहीं, 100%। और जब किसी की डेथ हो जाती है, मेन मोटो हमारा ये कि हमारी लीगल टीम उस पर काम करती है, उनके लिए सारी सेटलमेंट करेगी। अब आप बताइए, किसी के घर में अगर डेथ हो रहा है, क्या वो पर्सन कैपेबल है कि खुद जाए और ऑफिस के चक्कर लगाए कि ये डॉक्यूमेंट था सर, यहाँ पे मेरे स्टॉक मार्केट में इतनी इन्वेस्टमेंट थी, मैं इसको कैसे गेन करूँ, तो वो उस मेंटल स्टेबिलिटी में नहीं है तब। तो उसे हम सपोर्ट करते हुए थे कि आप अब दुख में हो तो आप उससे रिकवर करिए, आप घर पे आराम करिए, हमारी टीम आपके लिए काम करेगी, आपको कहीं ऑफिस में धक्के खाने की जरूरत नहीं है। सर आपकी नेचुरल डेथ होती तो उसको मिलता है सर, इस तरह से एक्सीडेंट डेथ हुई तो उसको मिलता है, जो नेचुरल डेथ जी। हार्ट अटैक हुआ, कैंसर हुआ, तो उसके लिए आपकी कंपनी क्या कर रही है? डेफिनेटली देखो, टर्म्स एंड पॉलिसीज जो है वो तो सबके लिए है। हेल्थ इंश्योरेंस ने जो बोला है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई ड्रिंक एंड ड्राइव में अगर किसी की डेथ हो जाए तो उसमें तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज वो अलाउड ही नहीं है। सिंपल सी बात है, इंश्योरेंस पॉलिसीज को हम लोग ऑबे करते हुए, जहाँ पे आप सही हो वहीं पे हम लोग आपके साथ करें। अगर कोई डिफॉल्ट है तो उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। जैसे आपने बोला कि एक्सीडेंटल अगर उसका हेल्थ इंश्योरेंस में कवर होगा तो ही उसे बेनिफिट मिलेगा, अगर नहीं है कवर तो सिंपल सी बात है, नहीं मिलेगा। वो चीज़ हम लोग प्रमोट भी नहीं करते, हमें जेन्युइन चीज़ें करनी है। आपका मतलब डेटा आने वाला है जी, साइबर सिक्योरिटी किस यूज की है? ये डेटा हमने सारा सिक्योर रखा गया है। काफ़ी सारे हमने आईटी एक्ट को हम लोग फॉलो करते हैं। इवन हमारा सेबी का रजिस्ट्रेशन अभी पाइपलाइन में है, हम लोग ये सारा डेटा सेबी को भी दे रहे हैं विद द परमिशंस ऑफ ऑल गवर्नमेंट रिकॉर्ड। एक रिसर्च एनालिटिक्स का हमारे पास लाइसेंस है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग सारा डेटा स्टोर कर रहे हैं। हमारी प्राइवेसी पॉलिसी बोलती है कि हम लोग डेटा किसी को शेयर नहीं करते, एवरीथिंग इज सेफली सिक्योर्ड विद अस। तो डेटा सिक्योर के लिए कोई कंसर्न वगैरह साइन करेंगे क्या? येस, हमारा एक सेल्फ एग्रीमेंट होता है, जब भी आप साइन अप करते हैं तो डेटा आपका 100% हमारा सिक्योर होता है, ये एश्योरिटी हम लोग आपको देते हैं। और कंपनी और जो कोई ले रहा है उनका कंसर्न कुछ एग्रीमेंट हो जाता है? येस, डिजिटल एग्रीमेंट होता है, जैसे आपने साइन किया, जैसे आप हर एप्लीकेशन में करते हो, एक चेक बॉक्स होता है यू एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन, उसमें सारी चीज़ें हैं कि डेटा हम लोग रीयूज़ नहीं करते। कोई डिसीज भी है क्या? और जैसे आपने बताया कि ड्रिंक एंड ड्राइव एक तो ऑप्शन, हाँ। कोई और डिसीज भी है क्या इसमें जो नहीं ले सकते, फैसिलिटी नहीं दे सकते? देखो एग्जांपल्स काफ़ी सारे हैं। जैसे ड्रिंक का मुझे पता है, जैसे स्मोकिंग का होता है, काफ़ी सारे लोग इंश्योरेंस में डिक्लेयर नहीं करते कि दे स्मोक, बट एक्चुअल प्रैक्टिकल में वो स्मोक करते, तो उनका इंश्योरेंस रिजेक्ट हो जाता है वहाँ पे। कोई डिसीज भी ओपनली नहीं बताते हैं फिर भी ले लेते? नो, डिसीज़ का नहीं होता है इसमें। अगर जेन्युइन कोई नेचुरल डिसीज़ है तो वो कंपनीज तो सेटल करती है। 50 लाख से ज़्यादा रिटेलर ऑलरेडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये एप्लीकेशन है, वहाँ पे आप देख सकते हो, या मैं आपको मोबाइल शेयर करूँ, दोनों। नहीं, 600 रुपीज़ ईयरली फीस है हमारा, इतना ही फीस स्ट्रक्चर है। आफ्टर सेटलमेंट नहीं, हमारा कोई फीस नहीं है उस चीज़ पे। That is only registration fees is only our fees. यस, वही सर्विस हम लोग ले रहे हैं। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या है? आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का महत्व है कि हम प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, लेगेसिस्ट, जो हमारा नया मोटो है, फर्स्ट प्रोडक्ट है। सैटमैट ग्रुप को हमने 7 साल कंप्लीट किए हैं। 2017 में हमने शुरुआत की थी और आज हमारी कंपनी को 7 साल पूरे हुए हैं। उसी मौके पे हम लोग एक प्रोडक्ट हमारा लॉन्च कर रहे हैं जो कि लेगेसिस्ट है, वही हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस का। सर क्या कहना चाहते हैं, जो स्मार्ट ग्रुप है कितने साल पुराना है और क्या क्या चीज़ें उसमें उपलब्धियाँ हैं? जी, सैटमैट ग्रुप को 7 साल हो चुके हैं। हम लोग मेजरली 3 सेगमेंट में काम करते हैं। एक सैटमैट टेक्नोलॉजीज, जिसमें हम लोग सॉफ्टवेयर और आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सैटमैट फार्मा, जिसमें हमारा फार्मास्यूटिकल्स और मेडिसिन का काम होता है। और सैटमैट इवेंट, जिसमें हम लोग आउटडोर म्यूजिक कॉन्सर्ट्स करते हैं। और सर आपसे कहना चाहते हैं सर, कितने लोग इससे जुड़े हुए हैं इसमें? अगर आप देखना चाहेंगे तो हमारा क्लाइंट बेस है, जो हम पहले से ही मल्टी रिचार्ज में काम कर रहे थे, तो वो हमारे क्लाइंट बेस है, जो आप देख सकते हैं 2 lakhs to 20 lakhs पीपल ऑलरेडी एज अ रिटेल हमारी सॉफ्टवेयर के अंदर काम कर रहे हैं करंटली। सर अगर बात की स्मार्ट करके है जो सैटमैट ये स्मार्ट, इस पे मतलब जिस प्रकार से मोबाइल पे ही रहेगा कि और कोई डॉक्यूमेंट पूछने के लिए या फिर घर पे कोई आएगा वेरिफिकेशन के लिए? नहीं, कैसा रहेगा? ये टोटली डिजिटल प्लेटफॉर्म है। सो यू आपको दोनों दिया जाएगा, आपके पास वेब एप्लीकेशन भी होगा, आपके पास मोबाइल ऐप भी होगा, आप दोनों यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो वेब एप्लीकेशन ही यूज़ कर सकते हैं, या आप चाहे तो मोबाइल एप्लीकेशन भी यूज़ कर सकते हैं। इस प्रकार से अगर सर बात की जाए, डिजिटल है लेकिन डिजिटल में कभी कभी कैसा होता है कि आपका सेम ब्रांड जो उनका भी वही रहता है, लेकिन बिलीव कौन करेगा कि मतलब आपका सेम वही है और भी कोई दूसरा कॉपी कर रहा है? नहीं, जैसे आप देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट हमने न्यूली लॉन्च किया है, तो अगर आप मार्केट रिसर्च करेंगे तो आपको इस टाइप का भी करंटली कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा।
या कोई एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर नहीं मिलेगा जिसमें एग्जैक्टली जो हम अचीव कर रहे हैं वो कोई और अचीव कर रहा है, ऐसा कोई मार्केट में आपको करंट एग्जिस्ट नहीं मिलेगा। तो ये एक न्यू थिंग है जो हम न्यूली लॉन्च कर रहे हैं आज। इसमें क्या क्या उपलब्धियाँ मिलेंगी सर? बैंक हो गया, आपने बोला इंश्योरेंस की सारी चीज़ें होंगी, काफ़ी चीज़ें होंगी, उसको लेकर क्या क्या चीज़ें अंदर रहेंगी स्मार्ट में? इसमें तो जैसे ये एप्लीकेशन आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन में बेसिकली आपको क्या करना है, आपको साइन अप करना है, उसके बाद आपको आपका केवाईसी कंप्लीट करना है। केवाईसी में आपको आपका आधार और पैन वेरीफाई करना है, जो गवर्नमेंट के एपीआई थ्रू वेरीफाई होता है। तो आपका जो भी वेरिफिकेशन होगा वो आपके ओटीपी थ्रू ही होगा, तो अदरवाइज़ कोई दूसरा पर्सन उसे इंटरेक्ट या कोई मिसयूज़ नहीं कर सकता। तो इट इज़ ओनली यू कि जो आप हैं आप ही उसको वेरीफाई करने वाले हैं। उसके बाद जो भी एसेट्स आप ऐड करने वाले हैं उसको हम आप सिक्योर रखते हैं, इनक्रिप्टेड रखते हैं हमारे पास। और जो जैसे कि आपका कोई नोट्स है, आपको इन फ्यूचर किसी चीज़ की कोई चीज़ आप चाहते हैं कि जो आपको फैमिली को पास ऑन करना चाहते हैं, तो जैसे आपने कहीं कुछ इन्वेस्ट किया होगा या कुछ चीज़ें होगी तो आप नोट्स में भी ऐड कर सकते हैं। सर जिस प्रकार से अगर बात की जाए तो स्मार्ट ग्रिड के लगे रहेंगे फीचर्स अंदर, फीचर्स अंदर रहेंगे। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने आपको डेमो दिखाया है हमारा। तो यहाँ पे आप एसेट्स अपने ऐड कर सकते हो। तो इस एसेट में आप जो भी आपके एसेट्स रहेंगे वो आप ऐड कर सकते हो। जैसे कि इंश्योरेंस पकड़ लो, या फिर मेरे खुद की बैंक की डिटेल्स होगी, या फिर मेरी कैश कहाँ पे है, इवन मेरी गाड़ी कौन सी है, तो ये सारे अपने एसेट्स हैं। तो जो भी एसेट्स आपने रहेंगे वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। इवन हमने यहाँ पे बिल का भी एक ऑप्शन दिया है, तो आप अपनी बिल भी लिख सकते हो। तो इवन हमने और एक फीचर दिया है जहाँ पे आप अपना डेथ नोट रख सकते हो। किसी को दोस्त को अगर वो ऐसा कि हैप्पीली नोट रहते हैं कि अगर मुझे किसी दोस्त को कुछ बोलना है, कुछ कहना है, तो मैं वो भी वहाँ पे कह सकता हूँ। तो वो भी एक फीचर हमने लॉन्च किया है। सर जिस प्रकार से घर बैठे सब कुछ सारी चीज़ें मिल जाएंगी इस फीचर से? जी बिल्कुल, सारे फीचर जो है घर से यूज़ कर सकता है, कहीं पे फिजिकली जाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे लाइट ज़रूरत बिल से लेके सारी चीज़ें, फीस जो लेना, लाइट बिल लाइट बिल होता है उसको पे करना है, काफ़ी से फीचर्स होते हैं उसको भी लेके नहीं, ये फीचर्स हमारे इस एप्लीकेशन में नहीं है। ये लेगेसिस्ट जो एप्लीकेशन है ये सिर्फ इसी चीज़ के लिए है कि आपके एसेट जो है उसको स्टोर करके नॉमिनी तक पहुँचाए। अच्छा, इस फीचर्स में नहीं है। यस, ये बिल पेमेंट के लिए नहीं है। सर आप लोगों से क्या बोलना चाहते हो अगर बोलना है तो आपको? लोगों से बोलना चाहते हैं कि आप जितना भी इन्वेस्ट कर रहे हो, एनी अमाउंट, ठीक है, आप 1000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो या 10,000 कर रहे हो या 10 लाख कर रहे हो या करोड़ रुपए कर रहे हो, तो वो आपका सेफ होना चाहिए। बाई चांस आपको कुछ हो जाता है वो आपकी फैमिली को मिलना चाहिए। यही हम कहना चाहेंगे, इसी के लिए आपको यह एप्लीकेशन यूज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि उस चीज़ की गारंटी आप खुद नहीं ले सकते, ना कोई ले सकता है, बट हम ले सकते हैं कि आपकी जितनी भी एसेट्स है उतनी आपकी फैमिली को मिलेगी ही 100%। सर इंश्योरेंस के बारे में क्या? इंश्योरेंसेस में जैसे मैंने बताया कि इंश्योरेंस क्लेम करना काफ़ी डिफिकल्ट प्रोसेस होता है आजकल, ठीक है, या कुछ लोग हैं जिनको पता ही नहीं है इंश्योरेंस था भी इनका या टर्म इंश्योरेंस नहीं होता है। नॉर्मली लोग बताते नहीं है, बताते भी है तो वो सिचुएशन में लोग भूल जाते हैं। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे नहीं होने वाली है, यहाँ पे 100% क्लेम सेटलमेंट होने वाला है। ठीक है, यस, तो ट्रस्ट वहाँ पे होता है। हमारे पास सारे गवर्नमेंट लाइसेंस है जिसके ऊपर हमारे ऊपर लोग ना ट्रस्ट करें, बट गवर्नमेंट के ऊपर तो कर सकते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन हम लोग सारे फॉलो करके ही हम लोग ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। कोई कॉल, कोई एप्लीकेशन, मतलब क्या रहेगा उसके लिए? नहीं, पर्टिकुलरली कोई कॉस्ट नहीं चाहते, गवर्नमेंट गाइडलाइंस के हिसाब से ही हम लोग काम कर रहे हैं इस चीज़ के लिए।